चलिए, so we'll start accounting standards now. First, before starting accounting standard, total how many accounting standards are there? 29 accounting standards are there. From 29 accounting standards, already accounting standard 6 withdrawn and included in AS 10. Accounting standard 8 already withdrawn, included in AS 26. Okay, and last 3 standards have been generally redrafted, and in the place of these standards, IFRS based terminology has been covered. Okay, so total 29 standards are there. In 29 standards, last 3 standards generally will be not applicable to the CA students. That is, accounting standard 30 is not applicable to you. Clear? Till accounting standard 29, CA students have to learn almost all standards except 1 or 2. CMA students 4 to 5 standards are there. 4 to 5 standards. Clear? Chale, so before studying the standards, first we have to understand introduction part, okay, a preface of the accounting standards, framework of accounting standards, and then applicability. Thereafter, all accounting standards one by one we have to study. Clear? So this is memory based subject also. Not only concept based, this is also based on memory, because you have to remember some numbers, you have to remember certain points also. In limited places, memory will be tested. First, why accounting standards important to you? That is the question. So when company prepares the financial statement, it is the duty of every company, responsibility of every company to generally submit the audited financial statement to the registrar of companies and audited financial statement to the SEBI, and they have to generally submit the audited financial statements to National Stock Exchange and your Bombay Stock Exchange on regular basis. On regular basis means on quarterly basis also, yearly basis also. So the companies which is listed in NSE or BSE, these companies have to report on quarterly basis, and any company which is not listed in NSE or BSE, there is no compulsory obligation for them to report on quarterly basis. They have to report on yearly basis only. This is the first difference. Clear? So to submit the audited financial statement to registrar of companies, SEBI and National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, generally accounts must be audited. Accounts must be audited. Clear? Or sometime unaudited financial statements also they will submit in some cases also. Clear? So when financial statements they are preparing, financial statements should be prepared on true and fair view basis. Whenever a company prepare the financial statement must be prepared on what? True and fair. When you study some sections relating to Companies Act, in Companies Act you have accounts and audit part. In Companies Act you have accounts and audit part. Then accounts and audit part, especially in accounting part, first section which you have to study is section 128. In section 128, the Companies Act section 128 generally explains what? Every company has to prepare the accounts according to the reporting requirement. According to reporting requirement means either on quarterly basis or on annual basis. And financial statement must be prepared on true and fair view. That is mentioned in section 129. And financial statement must be prepared on the basis of accrual basis. Here cash basis is not applicable. Company cannot prepare the accounts on the basis of cash. Company has to prepare accounts on the basis of accrual only. And they have to follow double entry system of accounting. Clear? And they have to use XBRL system. They have to use XBRL system, Extensive Business Reporting Language System, for accounting and reporting.
and they have to furnish all the details to statutory authorities to whom they have to submit the details or required to submit the details. So this is the necessaries where companies have to submit the documents and on what basis they have to prepare the financial statement. But the question is, financial statement will be true and fair is mentioned in section 129. So when it will be termed as true and fair? In simple words, when company prepare the financial statements, financial statement must be true and fair. So when this will be called as true and fair? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू एंड फेयर का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रहना और विश्वसनीय रहना। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहना, सही रहना चाहिए और विश्वसनीय रहना चाहिए, मीन जिस पे आप विश्वास कर सके, जिस पे आप विश्वास कर सके। तो ट्रू एंड फेयर इसलिए दिया गया है वो। तो कब उसको मान लिया जाएगा? व्हेन इट शुड बी कंसिडर्ड एज ट्रू एंड फेयर, व्हेन इट इज complied by accounting standards. It is complied by accounting standard. When financial statements are prepared by complying the accounting standards, then only it is treated as true and fair. Then only it is treated as what? True and fair. That's why accounting standards are compulsory for you to learn. Because who will prepare the financial statement? Management will prepare the financial statements. Financial statement preparation responsibility is of management. Management will instruct chartered accountant, internal auditors, and chartered accountants will prepare the financial statements. So financial statement must be prepared according to the financial reporting framework. So when it should be treated as it is prepared according to financial reporting framework, when it is true and fair. When it is true and fair, when there is no material misstatements in that. When there is no material misstatements in that, then it is prepared on the basis of true and fair. Okay? So if any financial statement which is not complied by accounting standard, that is not treated as true and fair, in simple words. That's why every chartered accountant who is preparing the financial statement has to comply all the accounting standard notified. All the accounting standard notified by central government and Ministry of Corporate Affairs. And Ministry of Corporate Affairs. So according to the accounting standards notified by central government and Ministry of Corporate Affairs, company has to prepare the financial statements. Understand? Now, if financial statements are not prepared with accounting standard, nobody will trust. So trust is very important factor in that. So for trust purpose, compliance of accounting standards is necessary. Okay? That is the reason ki all companies have to prepare financial statement according to accounting standards notified. So these points you will discuss in law subject in 129 section. ये कहाँ पर मिलेगा आपको? सेक्शन 129 लॉ पेपर में मिलेगा आपको। अकाउंट्स एंड ऑडिट बोलकर आता वहाँ पर, तो 129 सेक्शन आएगा, उसमें लिखा हुआ है सब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ट्रू फेयर, इट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल, इट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री, इट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन एवरी मीन्स फाइनेंशियल ईयर एंड और क्वार्टरली बेसिस, ये सब लिखे हुए उसके अंदर पॉइंट्स। तो हियर ऑल्सो फर्स्ट पैराग्राफ इफ यू सी सेम इज मेंशन्ड, सेक्शन 129 अभी जो एक्सप्लेन किया हूँ मैंने, every company has to prepare financial statement and financial statement should be complied by accounting standards notified. Okay, this is the reason कि you are learning the accounting standards. अब ये समझ में आएगा कि accounting standard पढ़ रहे क्यों आप? क्लियर? क्योंकि accounting standard नहीं पढ़ेंगे आप तो financial statement नहीं समझ में आएगा आपको. When you do not have the accounting standard knowledge, you cannot understand financial statement. To understand the financial statement in systematic way, generally knowledge of accounting standard required. Even if you prepare accounting standard, financial statement, accounting standard compliance necessary.
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस नेसेसरी है, तो बनाने वाले के लिए भी नेसेसरी है, समझने वाले के लिए भी नेसेसरी है वो, इसलिए आपको पढ़ना है वो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर इशूइंग accounting standards. A procedure for issuing accounting standard means in India, actually accounting standards came into existence from 1977. Before 1977 there is no accounting standards in India. 1977 में India accounting standard board has been established. So from 1977 onwards accounting standard board started to prepare the accounting standards, and that will be implemented in every company which is preparing the financial statements. That company has to comply with this. Okay, so according to the instructions of accounting standard board, accounting standards will be drafted. Okay, तो किसके निर्देशानुसार accounting standard बनेंगे? accounting standard board के हिसाब से. In accounting standard board, different people will be having the membership. Majority members will be chartered accountants, and thereafter from other institutes also different members will be there, like CMA Institute, CS Institute, okay, Chamber of Commerce, clear, retired judges, Reserve Bank of India के retired employees, clear, and some of the university professors, some of the accounting experts. So there is a composition of different types of persons in the accounting standard board. So in India, accounting standard board will draft and implement the accounting standards. So when accounting standard board is drafting and preparing and implementing the accounting standards, what procedure is followed? So first, exposure draft is prepared. What is prepared? Exposure draft. Suppose one new accounting standard required. Already the accounting standard which has been issued, in that updation and developments will take place. There is no question about that. But new standard whenever is going to implement, first what is required? Exposure draft is required. Suppose new accounting standard required on certain area. Like on water, there is no accounting standard. On agriculture, there is no accounting standard. Ind AS में है agriculture पर. But accounting standard, suppose agriculture based accounting standard is not there. Suppose accounting standard board decided कि भाई on agriculture we have to prepare the accounting standard. Clear? So first they will prepare the exposure draft. Now accounting standard board will not decide कि we should came out with this standard. वो लोग तो आराम से बैठे हुए रहेंगे. पुलिस स्टेशन में पुलिस कैसा बैठती है? केस आया तो काम करते हो लोग. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी वैसे रहेगा, आराम से बैठा हुआ रहेगा वो. When industry people realize कि they are facing the difficulty, industries they are facing the problems, they will communicate, भाई we are facing the accounting problems in this area, how to do accounting we are not understanding, what should be followed we are not properly having the knowledge about that. So if you give this accounting standard on this, we will follow that, and according to that we will prepare a financial statement that will be communicated to accounting standard board. Then accounting standard board will prepare the exposure draft. They will have team, so members team. So to members team they will provide this task, you should prepare the exposure draft. So exposure draft कैसे बनाते हो लोग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के लोग. हंसना नहीं बोलता हूं मैं, दूसरे देश के लोग कैसा बना है पहले वो देखते हो लोग. मीन्स अदर कंट्रीज ऑन व्हाट बेसिस दे प्रिपेयर्ड. फर्स्ट यूके का देखते हो लोग, किसके देखते हैं? यूके, देन यूएसए. दोनों को कॉपी पेस्ट करके बना देते हैं. हंस रहे क्या? बराबर बोल रहा हूं मैं. कुछ नया इंप्लीमेंट कर देते, थोड़ा बहुत उसके अंदर नमक मिर्ची डाल देते हैं. क्लियर?
or sometime suppose if there is no standard in UK, USA, then they have to prepare the exposure draft from root level. In that case, challenges will be there. Mostly they will take the information from UK, US body, and in that some plus minus they will do, and they will prepare the exposure draft. Sometime new standard also they will prepare. 90%, 95% standards are UK, US based. 5% वो लोग बना लेते हैं ऐसा. Clear? समझ में आया ना? Thereafter, that accounting standard exposure draft is sent for public review, sent for public feedback. In that feedback, anybody can participate who are the members of ICI, CM Institute, CS Institute, IM professional, university professionals. Okay? And they can give the feedback. And they can provide ideas also. By in this area, other countries are following this, our country is following this, so this is not correct. If you follow this type of information, that will be good. So they can give the feedback. So after collecting the feedback, if accounting standard board think it is good, it is in the interest of our country, or it is benefiting, then they will accept that. Otherwise they can reject also. तो फीडबैक देना तुम्हारा काम है, एक्सेप्ट करना नहीं करना उनका काम है. ओके? 90% फीडबैक रिजेक्ट ही होता है. 90% फीडबैक रिजेक्ट ही होता है. Only 10% cases feedback is accepted. Clear? After that, research group will finally check the draft and they will analyze each and everything. Then finally accounting standard will be drafted and it will be sent to Ministry of Corporate Affairs, and ultimately it will be issued through official gazette, government order. क्लियर? एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट पे डाल देते हैं उसको. किस पे डालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. क्लियर? दिस इज द प्रोसीजर. बट व्हेन दे प्रिपेयर द एक्सपोजर ड्राफ्ट, इन दैट एक्सपोजर ड्राफ्ट व्हाट आइटम्स आर कवर्ड? अभी तक क्या समझे आप? मिठाई कैसे बनी? अब क्या समझेंगे मिठाई में क्या डाले बोलूंगा आप? हाउ दे प्रिपेयर द स्वीट, सो फॉर यू अंडरस्टैंड दैट. Now in sweet, what ingredients they will mix, you have to understand now. So in exposure draft, what they will cover? So in exposure draft, first they have to consider what? Next they have to consider what? In what sequence exposure draft has to be prepared? So first objective will be covered. What is covered? Objective of the standard. Why this standard is prepared? What is the objective of this standard? That is covered. So objective of the स्टैंडर्ड यहां पर दे दिया गया, देखिए आपको. ओके? नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट एक्चुअली? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड मीन्स जनरली, फॉर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन थ्रू वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज रिलेटेड टू बोरोइंग कॉस्ट. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इज व्हाट? कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस शुड बी चार्ज टू P&L or it should be charged, means added to asset. Means interest expenses, two treatments we have. Either it is added to asset or it is charged to P&L. So when it should be added to asset, when it should be charged to P&L, that is the objective of accounting standard 16. Another example, accounting standard 10, property plant equipment. Means whenever we incur any expenditure on PPE, that expenditure should be capitalized or that should be charged to P&L. Okay? That is the objective of accounting standard 10. Clear? Sometime it is added to or capitalized, or sometime it is charged to P&L. You will understand when you learn AS10. अभी बोलूँगा तो आधे से आपको समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि पढ़े नहीं आप लोग. तो 4-5 बच्चे जो अटेंड करें उनको मालूम है इससे पहले. राइट? This is the objective. Next is scope of the standard. Scope means, जैसे एग्जाम्पल के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे वादे किए हैं.
200 यूनिट फ्री, हंसने का जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल परफेक्ट सेट होता है इसमें, सुनो आप। 200 यूनिट फ्री, गैस सिलेंडर फाइन रेट, ओके, बहुत सारे कुछ और भी बोले, मेरे को याद नहीं है बराबर से। तो अब यहाँ पर बैठ के जो है एक करोड़पति का बच्चा है ना, खुश हो रहा अंदर ही अंदर। अब उसके पिताजी करोड़पति है, मीन्स कांग्रेस गवर्नमेंट हैज मेड सम promises. Why they can give or they cannot give, I don't know. Only I am recalling their promises. What promises they have made? 200 units, electricity free, gas cylinder will be at 500 rupees, okay, bus free, and one house free, and pension also. These are the freebies they have promised with the Telangana people, right? Now in class 1, student is there on the corner. He is a crorepati person. He is also thinking कि I am also eligible for this scheme, sir. Or only other persons are eligible for scheme, sir. भाई कांग्रेस गवर्नमेंट क्या बोली? ये थोड़ी ना बोली करोड़पति को नहीं देंगे, गरीब को देंगे सिर्फ, ऐसा तो नहीं बोले ना। तो बेचारे के सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now Congress government has not told कि this 200 units free electricity will be given to this category person only. So crorepati person can also think भाई 200 free ना, okay, we are also eligible. We are also eligible. So accounting standard also same. All organizations will think that this standard is applicable on us. But ultimately accounting standard will give the clarification. कि this industry is applicable, this industry is not applicable. तो अप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है? किसको अप्लीकेबल रहेगा, किसको नहीं रहेगा? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में भूल गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं भूलता। समझ में आई बात? कांग्रेस गवर्नमेंट वाले शुरू में बोल देते थे भाई इन लोगों के लिए एलिजिबल, इन लोगों के लिए नहीं है, तो बेचारे सपने तो नहीं सोचते थे। अननेसेसरी रामू शामू सब सपने सोच लिए। अब बाद में क्या हो गया? ऑफिस को जाते ही फॉर्म लेकर यू आर नॉट एलिजिबल एंड सम पर्सन्स आर एलिजिबल। तो अल्टीमेटली ऑफिसर्स आल्सो डोंट नो टू होम इट इज अप्लीकेबल। क्लियर? उनको खुद को नहीं मालूम है। क्लियर? सो इन फ्यूचर मे बी दे आर कमिंग विथ सम न्यू आइडियाज, आई डोंट नो, बट व्हेन दे गिवन द प्रॉमिसेस, मैं शुरू में पढ़ाने से पहले लास्ट बैच में बोला भी था मैं कि इंडिया में फ्री में लकड़ी मिल रही हो तो लोग मरने तैयार हो जाते हैं। उसको कहानी सच हुई। अब वो कहानी क्या हो गई? तेलंगाना में सच हो गई वो, क्योंकि अपने पास फ्री बोलते ही लोग पहले आ जाते हैं। तो अब कहां से मिल रहा है फ्री? देखो मिल रहा है क्या? पेंडिंग होते जा रहा है। क्या मिल रहा है? पेंडिंग होते जा रहा है। अब फ्यूचर में कुछ करेंगे, शायद कर दिए तो अच्छा है। चलो, अपन किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, पब्लिक को बेनिफिट मिला तो बहुत अच्छा है, बट उसमें स्कोप नहीं है, अपने पास है, मैं वो समझा रहा हूं। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे क्लियरली मेंशन कि टू विच इंडस्ट्री इज अप्लीकेबल, टू विच इंडस्ट्रीज इट इज नॉट अप्लीकेबल, टू whom it is applicable, to whom it is not applicable, where it is applicable, where it is not applicable. They clearly mention. That is called as what? Scope. इसको बोलते हैं scope. Clear? Next is definitions. Accounting standard is a very dry subject actually. You cannot think this is very simple. Means once you understand the standards, it will become simple. But first time when you learn, it will looking like very dry subject. So first time your involvement is very important. First time only you crack this, it will looking like simple. First time में अगर आप थोड़ा ढीले पड़ गए, आप पे हैवी हो जाता है। That is the speciality of accounting standard. Okay? So definitions required. Why definitions required? Because new terminology will come here. New terms will come in the standards. Because majority terminologies we have taken from UK and US. From its professional bodies, so new terms required to be explained, so definition required. So in almost all standards they will explain the definitions. What is the meaning of different types of terms which will be used in different standards? Clear? Like
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 2 में इन्वेंट्री बोल के आता, क्या था? इन्वेंट्री का मतलब समझाते लोग, इन्वेंट्रीज मीन्स व्हाट? क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश, तो कैश का मीनिंग समझाते हो लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लियर? नेक्स्ट अर्निंग पर शेयर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, they will explain what is earning per share, what is basic earning per share, what is diluted earning per share. So some definitions will also come here. So without those definitions you cannot understand this subject in perfect way. Okay, subject easy है, उतना टफ नहीं है, only थोड़ा पेशेंसी से पढ़ना पड़ता है आपको. What required? पेशेंसी. स्पेशली CMA स्टूडेंट्स के पास वही नहीं रहता. क्या नहीं रहता? पेशेंसी. पेशेंसी जिसके पास है ना, प्रोफेशनल पक्का बनता है. CMA रहो या CA रहो, पेशेंसी बहुत जरूरी है. बट मोस्टली CMA स्टूडेंट्स विल लूज द पेशेंसी. So you are likely to become a professional, so you should be very strict in this area. Clear? Next is recognition criteria. Recognition means what? Recording. Recognition means what? Recording. So when should be recorded? What is the timing of recording the things? Is called as what? Recognition. Recognition means recording. Like revenue, accounting standard 9, suppose you are learning, that is related to revenue. So when revenue will be recorded? नहीं मालूम है आपको, because you have not learned. So you have to follow the standard. So in standard they have given the clarification. What clarification? What clarification they have given? 2 points they have given. 2 points they have given. When ultimate risk and reward is transferred from seller to buyer. When ultimate risk and reward is transferred from seller to buyer, and there is no uncertainty in the ultimate collection. If these two conditions are fulfilled, at that time revenue is recognized. Suppose if risk and reward is not transferred, then revenue is not recognized. Revenue is, so when risk and reward is transferred and there is no uncertainty in collection, at that time revenue is recognized. Clear? So this is the importance of recognition. Recognition means when to record. Clear? Similarly, asset. When assets will be recorded. Suppose you purchase plant machinery, so immediately it is recorded, or after incurring installation charges, professional fees, whatever is related to your plant machinery, after adding those all things, it will be recorded. Almost all, after adding all those things, you have to record. Clear? But intermediate first year में क्या पढ़े आप? Purchase plant machinery, डाल दो बुक्स में एंट्री. बिकॉज रेडीमेड प्लांट मशीनरी था वहां पर. क्या था? जैसा प्लांट मशीनरी रहा है, मशीनरी लाकर घर पे रख दिया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू. बट रियलिटी इज डिफरेंट ना. प्लांट मशीनरी रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन, साइट प्रिपरेशन, बिफोर परचेजिंग यू हैव टू टेक द प्रोफेशनल एडवाइस, loading, unloading, freight, taxes, all this you have to pay. So all these are capitalized in the plant machinery. After that it will be recorded. So that is called a recognition. क्या बोलते हैं उसको? Recognition. Next रहता है उसके बाद recognition के बाद आपका measurement. Measurement means what? How to measure. Like inventory, consignment chapter you learn. इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट पढ़े ना आप लोग? तो कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी वैल्यूड और नॉट. कैसे वैल्यूड होता है वो? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर लोअर. एक्चुअली इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. इफ NRV is less than cost, then it will be recorded at NRV. In very extreme cases, NRV will be less than cost, but mostly always cost is higher than or less than NRV.
So always inventory is recorded at what? Cost. In very extreme cases, it will be at NRV. उसको बोलते हैं measurement principle. What is this? How to measure the inventory. Measure means how to value. How to value. Last and final is disclosure. Presentation and disclosure. How to present the items in financial statements. Like in P&L statement, how to disclose. In balance sheet, how to disclose. Then according to this, organization will present in P&L and balance sheet. In P&L and balance sheet. So this is procedure of accounting standards. Understand? आ रहा है समझ में? देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे पास पढ़ने के बाद समझ में नहीं आने का चांस ही न रहता है, क्योंकि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बुक्स का ऑथर हूं. आपको पहले भी बोला था मैं. क्या बोला आपको मैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बुक्स का ऑथर हूं. तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे खून में आ गया. सो अब क्लियर? जैसा अग्रवाल बनिया लोगों के खून में क्या रहता? बिजनेस रहता. जैसा अपने खून में क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. तो आपको नहीं समझ में आने का चांस नहीं रहता. फिर भी मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा. नहीं समझ में है तो पूछ लो, क्योंकि आपका माइंडसेट मेरे माइंडसेट में गैप आ सकता है. नहीं समझ में आया, रोकिए, पूछिए. इट इज योर राइट, यू कैन आस्क एनी क्वेरी. ये पूरे पेज पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. क्लियर? Next is applicability of accounting standards. Next is what? Applicability of accounting standard. Now, accounting standards will be applicable to all or not, that we will discuss at later stage. Right now, for accounting standard purposes, when we learn this heading, when we see this heading, most of the students think what? Ki to which organization accounting standard applicable, to which organization accounting standard not applicable. ये दिमाग में आएगा हेडिंग देखते ही, क्योंकि हेडिंग में क्या है? ये आएगा ना दिमाग में. बट इसका मतलब वो नहीं है. अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स व्हेन वी अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. So first we have to understand the different types of organization to whom accounting standards are applicable. To whom accounting standards are applicable. So for accounting standard purpose, organizations are broadly classified into two parts. Clear? Corporate, non-corporate. Corporate, non-corporate. Clear? देखिए इधर मेन. Corporate means company. Non-corporate means partnership firm, proprietary concern, Hindu undivided family, limited liability partnership. Clear? So that is called as what? Non-corporate. Corporate means companies, Reliance Industries, HDFC Bank Limited, clear? ITC Limited, clear? So these are the companies. Companies में generally banking नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि banking के लिए अलग लॉ applicable रहता है. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टीसीएस, ये अदानी, ये सब कंपनीज में कवर होते हैं इसमें. क्लियर? सो इन कंपनीज ऑल्सो वी हैव टू सेगमेंट्स, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज. इन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज वी हैव थ्री टाइप्स हियर: लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. सो कंपनीज नॉन एसएमसी, एसएमसी, नॉन कंपनीज level 1, level 2, level 3. First, non-SMC means what? We have to understand. Non-SMC means what? We have to understand. And level 1 also we have to understand. And SMC also we have to understand. Clear? ये तीन समझना पड़ेगा आपको, बाकी दो तो आराम से समझ में आ जाते हैं आपको. Clear? So before starting this, for non-SMCs and level 1, all accounting standards are applicable. For non-SMCs, level 1, all accounting standards are applicable. Or complete accounting standards are applicable. There is no relaxation. All accounting standard completely applicable. All paragraphs are applicable. All accounting standards, all paragraphs are applicable. So non-SMC, level 1, all accounting standards are applicable. What is non-SMC? What is level 1? I will explain at later stage. Wait. Next is small and medium companies.
level 2, level 3 companies. For this organization, some of the accounting standards are exempted. Some of the accounting standards are exempted. Now first we have to understand what is small and medium companies. ये समझना पड़ेगा. क्या समझना है आपको? देखिए, नॉन एसएमसी का मतलब है एनी कंपनी विच इज नॉट ए स्मॉल एंड मीडियम कंपनी. एनी कंपनी विच इज नॉट ए स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन एसएमसी. क्लियर? बट व्हाट इज स्मॉल एंड मीडियम कंपनी वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. So right now we have to focus on what? Small and medium companies. Ultimately we have to focus on small and medium companies. तो small and medium companies के बारे में डिस्कस करना है आपको. ओके, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, 5 कंडीशन. ये 5 के 5 पूरे सेटिस्फाइड होना, देन ओनली इट विल बी स्मॉल एंड मीडियम कंपनी. इफ एनी कंपनी एनी कंडीशन विच इज नॉट सेटिस्फाइड, देन यू नो स्मॉल मीडियम न रहेगा, फिर क्या बन जाएगा? नॉन एसएमसी बन जाएगा. क्या बन जाएगा? नॉन एसएमसी. इफ ऑल 5 कंडीशंस फुलफिल्ड, देन ओनली एसएमसी. इफ वन और मोर देन वन ऑफ दिस कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, इट विल बिकेम नॉन एसएमसी. अंडरस्टैंड? यहां तक समझ में आ गया है? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. क्लियर है सर? इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो मैं चेंजेस बाद में लिखा दूंगा वो. ओके, इफ एनी चेंजेस आर मेड आई विल एक्सप्लेन द चेंजेस, डोंट वरी, एट लेटर स्टेज. तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? फर्स्ट कंडीशन मीन्स एनी कंपनी और एनी एंटिटी, मीन्स दिस इज कंपनी ओनली. तो एनी कंपनी हुज इक्विटी or debt or both listed in any of the stock exchange in India or outside India or in the process of listing, then first condition is fulfilled. अगर कोई भी कंपनी है जिसके शेयर्स या डिवेंचर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो पहला कंडीशन फुलफिल्ड. या फिर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाले हैं तो भी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड. आ गया समझ में? इस एग्जांपल के लिए कोई छोटी कंपनी का ही नाम ले लो आप. ओके, कोई छोटी कंपनी का नाम ले लो. बड़े कंपनी की तो कैसा भी लिस्टिंग रहती है मालूम है आपको, लाइक अदानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, सत्यम नहीं, टेक महिंद्रा, एंड और भी टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, क्लियर, नेस्ले, प्रेस्टीज, डाबर, पतंजलि, ये पूरे लिस्टेड है. ये बजाज, ये तो मालूम है नाम आपको. अब कोई छोटी कंपनी है, विकास लाइफ केयर लिमिटेड, दिस इज लिस्टेड और नॉट, आपको नहीं मालूम है, पहली बार सुन रहे नाम ये. तो यू हैव टू गो टू दी वेबसाइट एंड हैव टू चेक कि दिस इज लिस्टेड और नॉट. तो ब्रैकेट में एनएससी बीएससी बोल के लिखा हुआ है तो लिस्टेड रहता हूँ. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ना, तो लिस्टेड रहता हूँ, तो ना रहता है फिर लिस्टेड वो. क्लियर? तो लिस्टेड है तो ऑलरेडी वो बड़ी कंपनी है. वो लिस्टेड है तो ऑलरेडी कौन सी कंपनी है? वो बड़ी कंपनी है. वो किसमें? निफ्टी 50 में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में. क्लियर? हाँ, लिस्टेड है, छोटी कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है, बट मोस्टली निफ्टी 50 and Sensex, any company which is listed, that is big company only. Clear? छोटी कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है, बट निफ्टी 50 सेंसेक्स में जो वो तो हमेशा बड़े रहेंगे. वो क्या रहेंगे? देखिए, भारत देश में लाखों कंपनी है, पूरे निफ्टी 50 में सेंसेक्स में नहीं आते. सेंसेक्स में 30 कंपनी आते, निफ्टी में कितने आते? 50 आते. तो 50 और ये 30 तो हमेशा क्या रहेंगे? बड़े कंपनी ही रहेंगे. वो उसको इंडेस लगते हैं. क्या लगते हैं उसको? ये नहीं रहता उसको, क्या एप्लीकेबल रहेगा? इंडेस, IFRS रहता है उसको. तो इंडेस उसका नाम है, बट एक्चुअली दैट इज व्हाट? IFRS. लिस्टेड है, बट दैट इज नॉट ए बिग कंपनी. दैट विल डिस्कस एट लेटर स्टेज.
बट निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जो कंपनी है उसको ये स्टैंडर्ड न रहते, कौन से रहेंगे उसको? इंडेक्स रहते उसको। क्लियर है? सो एनी कंपनी हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, तो कौन सी कंपनी हो जाएंगी? वो बड़ी कंपनी हो जाएंगी वो। फिर लिस्टिंग में नहीं रहना उन्होंने, क्या नहीं रहना उन्होंने? लिस्टिंग में नहीं रहा तो छोटी बनेंगी ना, क्योंकि मैं क्या बोला आपको, है तो कौन सी कंपनी है वो? बड़ी है। कौन सी कंपनी है वो? बड़ी है। तो बड़ी कंपनी नहीं चाहिए अपने को, चाहिए, तो क्या होना फिर? लिस्टेड नहीं रहना। यहाँ लिस्टेड लिख सकते, प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में कंडीशन को नॉट अप्लीकेबल लिखना अपन, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, बट वैसा मत लिखो, ऐसे ही लिख लो आप, सिंपल रहता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए, एनी कंपनी हुज इक्विटी और डेट इज लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मींस वो एसएमसी नहीं रहेगा, क्या रहेगा वो? नॉन एसएमसी रहेगा। तो एग्जामिनेशन इफ दिस क्वेश्चन इज टेस्टेड यू हैव टू राइट एनी कंपनी हुज इक्विटी और डेट इज नॉट लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो दैट इज व्हाट? स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। दैट इज व्हाट? स्मॉल और मीडियम कंपनी। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी ए बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि वो बैंकिंग कंपनी नहीं रहना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं रहना, इंश्योरेंस कंपनी नहीं रहना। वाई? बिकॉज फॉर बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लीकेबल, इंश्योरेंस कंपनी IRDA applicable, financial institutions also generally banking act is applicable. What is applicable? Banking act. And here we are learning our companies act. अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में इनका क्या काम है? ये इसको दूसरा एक्ट अप्लीकेबल है ना, और दिस सेपरेट एक्ट्स आर अप्लीकेबल, दैट्स व्हाई ये जो है आपके स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज में नहीं आते। किसमें नहीं आएंगे वो? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज में नहीं आएंगे वो। नेक्स्ट, टर्नओवर। नेक्स्ट इज व्हाट? टर्नओवर। देखिए टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर नहीं रहना उसका। इसके ऊपर नहीं रहना, 50 करोड़ के ऊपर नहीं रहना चाहिए, 50 करोड़ के नीचे रहना, 50 करोड़ के नीचे रहना। उस टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर मीन्स सपोज दिस ईयर you are understanding कि accounting standard applicable or not. So previous audited financial statement देखना, क्या देखना? Previous audited financial statement. So previous 12-month statement. In that, suppose turnover is not exceeding 50 crores. So that can be small and medium company. Next, debt or borrowings. Debt or borrowings, including public deposit, should not in excess of 10 crores during the immediate preceding accounting year. And here one more important point is that at any point of time रहना क्या? At any point of time. It means any company whose borrowings does not exceeds 10 crores at any point of time during the immediate preceding accounting year, then fourth condition will be satisfied. What is the meaning of this? Suppose तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है, समझिए 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22. Suppose here your borrowing is 20 crore. ये मई मंथ है, समझिए कौन सा मंथ है? इन मई मंथ योर बोरिंग इज 20 करोड़, बट दिस 20 करोड़ से रीपेड इन अगस्त, तो अगस्त में पे कर दिए, इन अगस्त इट इज रीपेड। ऑन 31st March there is no borrowing, no borrowing. So according to 31st March we will not check this condition. From beginning 1st April to 31st March, any point of time, if more than 10 crore borrowing is there, that will not become a small company, that will become non-SMC. तो 1st April to 31st March किसी भी टाइम पे अगर बोरिंग 10 करोड़ के ऊपर का आ गया तो कौन सी कंपनी बन जाएगी? वो नॉन एसएमसी। जबकि टर्नओवर ये दिन का देखना आप, टर्नओवर शुड बी ऑन बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट इज व्हाट? 31st March 22।
On 31st March 22, turnover should not be more than 50 crores. But borrowings 1st April to 31st March. At any point of time, if it is exceeding 10 crore, then it is non-SMC. Understand? आ रहा है समझ में? तो दोनों कंडीशन में डिफरेंस समझ में आ गया है. तो टर्नओवर के लिए लास्ट दिन देखना, बैलेंस शीट का आखिरी दिन. एक दिन पहले भी उसका टर्नओवर 0 है, 31 मार्च को 50 करोड़ का माल बेच लिया उन्होंने, तो क्या बन जाएगा उन्होंने? नॉन एसएमसी बन जाता. फिर उन्होंने क्या बन जाएगा? नॉन एसएमसी. जबकि बोरिंग में बैलेंस शीट डेट इट इज 0, बट बिफोर दैट सम बोरिंग्स आर देयर and that is more than 10 crore, then it is non-SMC. It is what? Non-SMC. Clear? And last and final. Last and final. शैतान के पेट में भगवान पैदा होते क्या? सुन बोलो इसका आंसर. हो सकते क्या? बोलो. नहीं हो सकते. तो छोटी कंपनी का मित्र बड़ा कंपनी नहीं रहना. छोटी कंपनी का मित्र बड़ा कंपनी नहीं रहना. क्योंकि छोटा आदमी बड़ों से दोस्ताना रख रहा तो उन्हें भी बड़ा ही है. फिर उन्हें भी क्या है? बड़ा है. वही पॉइंट है नेक्स्ट. विच इज नॉट ए होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ, विच इज नॉट ए स्मॉल एंड मीडियम कंपनी. अगर छोटी कंपनी किसी बड़े से फ्रेंडशिप कर रहा है तो उन्होंने भी क्या बन जाएगा? नॉन एसएमसी बन जाता. उन्होंने भी क्या बन जाएगा? नॉन एसएमसी बन जाएगा. क्लियर? सपोज वन स्मॉल कंपनी इज देयर, बट दैट स्मॉल कंपनी इज हैविंग दी सब्सिडरी. छोटी कंपनी है, बट उस छोटी कंपनी के पास पैसा बहुत है, तो उन्होंने एक बड़ी कंपनी को 50% शेयर खरीद लिया. फिर बड़ा हुआ नहीं हुआ उन्होंने, इसलिए उसको नॉन एसएमसी मानेंगे. क्या मानेंगे? नॉन एसएमसी. क्लियर? सपोज वन स्मॉल कंपनी परचेज मोर देन 50% शेयर्स ऑफ ए नॉन एसएमसी. एसएमसी परचेज मोर देन 50% शेयर्स ऑफ नॉन एसएमसी. So SMC will also become non-SMC. Clear? So all 5 conditions should be satisfied. Then only it will be what? If any one condition is violated, then it will become what? Non-SMC. पूरे 5 के 5 conditions satisfied होना. Clear? So this is what? SMC. Now non-SMC means what? Any company which is not a SMC. Any company which is not a SMC, that is what? Non-SMC. देखिए, corporate entity which is not SMC are considered as what? Non-SMC. So all accounting standards applicable. Clear? अब जो SMC है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल नहीं है, देख लीजिए इसको आप. ओके? सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज नॉट अप्लीकेबल. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 नॉट अप्लीकेबल. Accounting standard 21 not applicable. Accounting standard 23 not applicable. Accounting standard 27 not applicable. अब इसको हटा मारेंगे क्या? नहीं, सिंपल है. कैसे याद करना है देखो उसको. स्मॉल एंड मीडियम कंपनी मीन्स कंपनी विल हैव लिमिटेड बिजनेस ओनली. कंपनी विल हैव लिमिटेड बिजनेस. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली प्रिपेयर्ड बाय बिग कंपनीज, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट कंपल्सरी. चाहे तो ना बड़ा बना सकता. भाई अमीर आदमी जो है शादी में 50 आइटम बना रहा, गरीब नहीं बना सकता क्या? ऐसा रूल लिखा हुआ है यहाँ पर भी? बना लो, उसकी मर्जी है. अपना आपका दिवाला निकालना है, बना लो. तो यहां पर भी वैसे ही है, बनाने में कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा है मतलब उसका. अब एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछता हूं. एक्स लिमिटेड इज ए कंपनी विच इज ए स्मॉल एंड मीडियम कंपनी. इट हैज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. करेक्ट और नॉट बोलते बच्चे नॉट मार दे, टिक. रॉन्ग हो जाएगा. फिर बना लो, उसकी मर्जी है. नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, बट ऑप्शनली इट कैन प्रिपेयर. ऑप्शनली इट कैन प्रिपेयर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग रहता है. क्या रहता है? छोटी कंपनी है. अब इसका मतलब क्या है?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इसको क्यों अप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि दिस इज ए स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। तो बचपन में एक फिल्म आती थी इस टीवी पर, कुंवारा बाप बोलकर। क्या फिल्म आती थी? क्यों, उसका मतलब क्या है सुनो। कुंवारा बाप का मतलब बिना शादी के उसके पास बच्चे हैं। तो जो छोटी कंपनी है तो उसके पास सेगमेंट रहेंगे क्या? अब छोटी कंपनी के पास सेगमेंट रहते हैं क्या? बड़ी कंपनी विल हैव दिस सेगमेंट्स, स्मॉल कंपनी विल हैव दिस सेगमेंट्स। बिग कंपनी लाइक गोदरेज, गोदरेज में कितने सेगमेंट्स है? बहुत सारे सेगमेंट्स है। प्रॉपर्टीज है, एफएमसीजी है, क्लियर, फर्निशिंग बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है ना। तो दैट इज सेगमेंट्स। आईटीसी में कितने सेगमेंट है? तो भाई बोला था आपको मैं, एफएमसीजी, होटल, टोबाको, स्टेशनरी, क्लियर। रिलायंस में कितने सेगमेंट है? मेन सेगमेंट ऑयल, रिफाइनरी और टेलीकॉम, जियो, और अब तो स्मार्ट बाजार भी ऐड करा ना। ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी ऑल्सो, है ना। जियो फाइनेंशियल एक सेपरेट हो गया। क्या हो गया? सेपरेट हो गया। जियो फाइनेंशियल इज सेपरेटेड। सो सेगमेंट रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल टू नॉन एसएमसीज एक्चुअली। क्यों? क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी के पास बहुत सारे विंग्स रहेंगे, छोटी कंपनी के पास नहीं रहेंगे विंग्स, इसलिए 17 एप्लीकेबल नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल कंपनीज बिकॉज स्मॉल कंपनीज विल नॉट मेजरली हैविंग डिफरेंट सेगमेंट्स। लिमिटेड बिजनेस, उनका बिजनेस क्या है? लिमिटेड है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 रहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड होल्डिंग सब्सिडरी। So one company is purchasing more than 51% shares in another company, that the company in which they are purchasing more than 51% shares, that will become subsidiary of this company, and this company will become what? Holding company. So for that company financial statements will be prepared on the basis of AS 21. तो यहाँ पर ही जब उन्होंने बोल दिया कि होल्डिंग सब्सिडरी नहीं रहना, तो उसका स्टैंडर्ड भी नहीं रहना फिर इधर। करेक्ट और रॉन्ग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इज इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट 20% से ज़्यादा है बट 50% से कम खरीदे शेयर, तो क्या बन जाता हो? एसोसिएट। सपोज वन कंपनी परचेज मोर देन 20% शेयर्स बट लेस देन 50% है, तो दैट कंपनी विल बिकम व्हाट? एसोसिएट कंपनी। तो एक कंपनी जब दूसरे कंपनी में 20% शेयर खरीदा तो बड़ी कंपनी बनेगा ना उन्होंने। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज ए बिग कंपनी, दैट्स व्हाई दैट इज नॉन एसएमसी। The standard is also not applicable. Then AS 27 joint venture रहेगा। क्या रहेगा? joint venture। 20% तक शेयर्स है उसके पास। कितने शेयर्स है? 20%। इनो और बाकी के कुछ लोग मिलकर 20% खरीद कर 50% ज़्यादा मिलकर जॉइंटली होल्ड कर रहे। सपोज 2-3 कंपनीज जॉइंटली परचेजिंग मोर देन 51% शेयर्स एंड दे आर कंट्रोलिंग दैट कंपनी, तो इन दैट दिस AS 27 विल बी एप्लीकेबल। समझ में आया? So these standards are not applicable. So AS3, AS17, 21, 23, 27. Clear? समझ में आया? क्लियर ये? अब इसको कैसे याद रखना है? बिल्कुल आसान तरह से, अगर एग्जाम में भूल गए। छोटी कंपनी के पास ज़्यादा कैश नहीं रहता, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। छोटी कंपनी के पास बड़ा परिवार नहीं रहता, AS17। छोटी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती, AS 21। छोटी कंपनी 20 से 50% के बेसिक शेयर भी नहीं खरीद सकती है। छोटी कंपनी 20% शेयर नहीं खरीद सकती है ज़्यादातर केसेस में, 27। ऐसा याद रख लो उसको आप। क्लियर? नेक्स्ट, सम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पैराग्राफ्स आर एग्जम्प्टेड। ये तो पूरे एग्जम्प्टेड है। इफ दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इफ दे आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय नॉट कंप्लाइंग दिस, विदाउट कंप्लाइंग दिस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, ओके,
because this is fully exempted. अब जब other standards are also there for which some of the paragraphs are exempted. As AS 15, AS 19, 20, 28, 29, 25. AS 15 is employees benefit. छोटी कंपनी में एम्प्लॉयज कम रहते हैं, बेनिफिट्स ऑल्सो लेस. So AS 15 is related to employees benefit. To whom what? Employees benefit. So in big company, more benefits will be provided. Small companies, limited benefits will be there. So AS 15 में सभी तरह के benefits के बारे में बोला उन्होंने. But small companies, limited benefits only applicable ना, तो limited paragraphs only applicable. पूरे applicable नहीं. AS 20, AS 19. AS 19 is leases. So small companies generally leases पर ज़्यादातर प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, लिए भी तो लिमिटेड पैराग्राफ्स ओनली अप्लीकेबल. AS 20 अर्निंग पर शेयर. तो स्मॉल कंपनीज में अर्निंग पर शेयर तो रहता ही है, बट डाइल्यूटेड एंटी डाइल्यूटेड बहुत कम होता है. सम ऑफ द पैराग्राफ्स आर एग्जम्प्टेड. देन AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स. इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स मीन्स बिफोर एक्सपायरी असेट बिकेम एब्सोलेट. About asset life is 10 years, but after 4-5 years only asset is not in active use because of government policy. तो क्या करना पड़ेगा, उस asset को निकाल देना पड़ेगा. जैसे asset का लाइफ 10 साल का है, you use 4 years, but government policy you cannot use this type of assets whose life is 4 years or more. So you have to remove or not. तो उसमें कौन से स्टैंडर्ड में आ जाएगा वो? AS 28. So some of the paragraphs are not applicable. Impairment of asset. Then AS 29 provisions, contingent asset, contingent liabilities. Here also some of the paragraphs are not applicable. Then AS 25 interim financial reporting. Here also some of the paragraphs are not applicable. इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है, इस पे आता है आपको. इस पे नहीं आएगा क्वेश्चन आपको, टेंशन मतलब इस पे आ सकता है. तो ये याद रख लो आप अच्छे से, इसकी ज़रूरत नहीं ज़्यादातर. ओके, बिकॉज सम पैराग्राफ्स लिमिटेड एग्जाम्प्टेड मीन्स कौन से पैराग्राफ एग्जाम्प्टेड है वो फाइनल में समझ में आते हो. कौन से पैराग्राफ एग्जाम्प्टेड है कहाँ समझ में आएंगे? फाइनल में. इसलिए उस पर क्वेश्चन नहीं आता आपको. ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेंगे ना. चलिए, सो स्मॉल मीडियम कंपनी क्लियर. नेक्स्ट, नॉन एसएमसी ऑलरेडी एक्सप्लेन विच इज नॉट ए स्मॉल एंड मीडियम कंपनी. For non-SMC, all accounting standards are applicable. All accounting standards are applicable. चलिए पढ़ेंगे लेवल 1 एंटिटी. लेवल 1 एंटिटी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है. ये जो नॉट है ये हट जाता है यहाँ से. ये जो नॉट पढ़े ना आप, ये हट जाता है. क्लियर? बाकी सब सेम रहेंगे. वो नॉट हटा देना है बस वहां से. आपको क्या हटा देना है? चलिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है देखिए. लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी. एनी यहाँ गलती से भी कंपनी वर्ड नहीं लिखना. क्या नहीं लिखना? इंटरप्राइज वर्ड लिखना या एंटिटी लिखना. इंटरप्राइज और एंटिटी. एनी इंटरप्राइज और एंटिटी हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. ओके, सो दैट इज व्हाट फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड. अब देखिए, इधर डाउट आता है स्टूडेंट्स को. एक क्या डाउट आता है सुनिए. हियर स्टूडेंट्स विल हैव द डाउट, भाई company will issue the shares, will issue shares, will issue debenture. और ये कंपनी है क्या? लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट है. दिस इज नॉन कॉर्पोरेट. तो दिस इज नॉन कॉर्पोरेट, बट उन्होंने क्या बोल रहा है? इक्विटी और डेट बोल रहा हूँ. कंपनी विल इशू इक्विटी शेयर्स और डेट, बट दिस इज नॉट ए कंपनी, बट इक्विटी शेयर्स और डेट लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग. तो यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी को बोल रहा हूं.
म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को बोल रहा हूँ। किसको बोल रहा हूँ? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं रहती है, म्यूचुअल फंड क्या रहता है? ट्रस्ट रहता है। तो ट्रस्ट इज नॉट ए कंपनी। म्यूचुअल फंड क्या रहता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट बनाते म्यूचुअल फंड में, पहले क्या बनाते हैं? ट्रस्ट। देन वन स्पॉन्सर विल कम। ट्रस्ट के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं रहता है, उसको कौन स्पॉन्सर करते हैं? कंपनी वाले स्पॉन्सर करते हैं। तो टाटा वाले एक ट्रस्ट बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं वो लोग? एक ट्रस्ट बनाते हैं। देन ट्रस्ट शुड हैव स्पॉन्सरशिप। क्या होना उसको? स्पॉन्सरशिप। सो टाटा कंपनी विल स्पॉन्सर दैट। विच कंपनी विल स्पॉन्सर? टाटा कंपनी। क्लियर? तो म्यूचुअल फंड इज नॉट ए कंपनी, इट इज ए ट्रस्ट। इट इज ए ट्रस्ट। सो ट्रस्ट इज नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट। बट म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते ना रहते? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स विल बी लिस्टेड और नॉट? दैट्स व्हाई लिस्टिंग रिक्वायर्ड और नॉट? So here student should not confuse, this is related to mutual fund. किसका ये? Generally the question is arise in the minds of students what? कि this is not a company, so level 1 is not a company. So when this is not a company, how the shares and debentures they can issue and it will be listed in stock exchange. So they are giving here mutual fund. What example they are giving here? Mutual fund. ये mutual fund trust है ये। इसके यूनिट्स किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं। एग्जांपल के लिए मोतीलाल ओसवाल, नाम सुनेंगे आप, मोतीलाल ओसवाल, एडवर्टाइजमेंट भी आता है, देखिए। शादी का रिश्ता देखने के लिए कोई आता, तुम्हारे पास चॉइस है क्या पूछता हूँ? नहीं है बोलते वहां पर। मोतीलाल ओसवाल का एडवर्टाइजमेंट हमारे पास है बोलता हूँ, चॉइस है। क्यों? एक शेयर नहीं दूसरे शेयर में लगाओ, एक शेयर नहीं दूसरे शेयर में लगाओ। तो मोतीलाल ओसवाल जो है म्यूचुअल फंड है, कंपनी नहीं है उन्होंने, तो उसके जितने भी यूनिट्स है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं। रहते नहीं रहते? क्या दिखाना पड़ेगा क्या एक बार? ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक का दिखाता हूं मैं आपको। इंडियन कंपनी मैंने बाहर के जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करे सो वो दिखाता हूं आपको। मिस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है ये। तो मोतीलाल ओसवाल 100 नैस्डैक 100 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब ये है कि मोतीलाल ओसवाल भारत देश के लोगों से पैसा लेंगे। मोतीलाल ओसवाल विल ट्रस्ट विल टेक द मनी फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स एंड दे विल इन्वेस्ट इन नैस्डैक। नैस्डैक में इन्वेस्ट करता हूँ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपने पास से कहां जा रहा पैसा? नैस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है। क्लियर? तो मोतीलाल ओसवाल कंपनी थोड़ी है, ट्रस्ट है ये। क्या ये? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। तो इसमें कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल भी अच्छी कंपनी है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो इसमें लगा सकते हैं आप, इसलिए स्क्रीन पर डाला मैं उसको। मोतीलाल ओसवाल कंपनी के जो की फाउंडर है उनका नाम है रामदेव अग्रवाल। रामदेव अग्रवाल उन्होंने प्रमोटर है उसके मेन, पर उन्होंने ही चलाते हैं, उन्होंने भी सीए ही है। क्लियर? तो मोतीलाल ओसवाल इज ए म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, इट इज नॉट ए कंपनी, but it will invest funds in different markets. So whenever funds are invested in different markets, so that is called as what? Exchange traded funds. Exchange traded funds. Second, banking company नाम बोलते हैं अपन लोग। So actually most of the banking companies are what? Cooperatives. क्या रहते हैं वो? कोऑपरेटिव बैंक। जैसे अग्रसेन बैंक कोऑपरेटिव है नहीं है, महेश बैंक कोऑपरेटिव, और कुछ बोलो नाम।
बच्चों के हाथ में दिन भर मोबाइल फोन रहता, नॉलेज कुछ भी नहीं आ रहा क्या? हमारे घर में इतने तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल फोन है तो रोते हो लोग। हाँ, आप तो उनसे बहुत बड़े, तो आपके पास भी कम से कम दिन में 2-4 घंटे तो मोबाइल फोन रहता ही होगा। फिर नाम याद नहीं है क्या? होगी बैंक के, प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक के? हाँ, क्या बोले उन्होंने? ग्रामीण बैंक, वो गवर्नमेंट बैंक है वो। दारुसलाम करेक्ट आंसर। और अग्रसेन बैंक, ये पूरे कौन से बैंक है? कोऑपरेटिव। तो पहले क्या बनाते लोग? कोऑपरेटिव सोसाइटी। दे विल क्रिएट व्हाट? कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन दे विल स्टार्ट द बैंकिंग बिजनेस। दे विल स्टार्ट द बैंकिंग बिजनेस। इसलिए कंपनी नहीं है वो, क्या है वो? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसलिए इस कौन से इसमें आ गया उन्हों? लेवल 1, बिकॉज लेवल 1 इज नॉट ए कंपनी, नॉन कॉर्पोरेट है ना ये। इसलिए बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज, वो किस में आएंगे? लेवल 1 में आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? लेवल 1 में आ सकते हैं। तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुथूट फाइनेंस नाम सुनेंगे आप, वो इसमें आता। किस में आता? लेवल 1 में आता। क्लियर? तो मैं नेक्स्ट इज ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज whose turnover other than excluding other income किससे ज्यादा रहना चाहिए? 50 करोड़ से ज्यादा रहना चाहिए। ये कब का रहना? 31 मार्च का रहना। कब का रहना है? 31 मार्च। एंड बोरिंग शुड बी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बोरिंग शुड बी एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम 1 April to 31 March. At any point of time, if borrowing is more than 10 crores, then it will be what? Level 1 entity. ये कंपनी नहीं रहना, लेकिन याद रखो क्या नहीं रहना? इंटरप्राइज वर्ड लिखना है यहाँ पे। क्या वर्ड लिखना? इंटरप्राइज। तो बोरिंग शुड बी मोर देन 10 crores, इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज of any of the above enterprise is also considered as what? Level 1 entity. अब यहां पर कंपनीज आ सकता है, क्योंकि अब होल्डिंग सब्सिडरी में एक कंपनी नॉन कंपनी को भी खरीद सकता, कर सकता ना। या नॉन कंपनी कैन इन्वेस्ट इन कंपनी ऑल्सो, नॉन कंपनी कैन इन्वेस्ट इन कंपनी ऑल्सो। हियर इट इज पॉसिबल। सो लेवल 1 entity, all accounting standards applicable, and non-SMC, all accounting standards applicable. Clear? And SMC, accounting standard 3, 17, 21, 23, 27 not applicable. And exempted paragraph 15, 19, 20, 25, 28, 29, some of the paragraphs are exempted. चलिए, तो ये हो गया लेवल 1 entity. Clear? अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स? अब कभी कभी ऐसा होता है, इतना पढ़े ना, अब इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अब उसमें फिर मेरे को दोष नहीं देना आप, मेरा काम पूरा पढ़ाने का है, बराबर। अब डॉक्टर के पास जाते पूरा बॉडी चेकअप कराने के बाद कभी कभी एक भी बीमारी नहीं निकलती, तो डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करते क्या आप? अच्छा ही रहेगा ना वो तो आपके लिए। चलिए लेवल 2। अब लेवल 2 में देखिए क्या करना रहेगा आपको। बिटवीन यूज करना है वर्ड। क्या करना है? बिटवीन। तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े? इट शुड नॉट बी मोर देन 50। देयर आफ्टर वी लर्न इट शुड बी मोर देन 50। एंड प्रीवियसली वी लर्न इट शुड नॉट बी मोर देन 10 crore। एंड देयर आफ्टर वी लर्न इट शुड बी मोर देन 10 crore। तो अब यहां पर क्या रहेगा? 1 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। समझ में आ गया है? ये लेवल 2 रहता है। क्या रहता है? लेवल 2। सो मोर देन 1 करोड़, नॉट मोर देन 50 करोड़ टर्नओवर। मोर देन 1 करोड़, नॉट मोर देन 10 करोड़। क्या रहना? बोरोइंग्स। क्या रहना? बोरोइंग्स। देखिए, ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज whose turnover
excluding other income, exceed 1 crore but does not exceed 50 crores. All commercial, industrial and business reporting entities whose borrowings, including public deposits, is more than 1 crore but not exceeding 10 crores at any point of time during the preceding accounting year, or holding and subsidiary of any of the above. तो क्या बन जाएगा वो लेवल 2 एंटिटी. एग्जाम्प्टेड में यहाँ पर भी सेम रहेंगे, एक्स्ट्रा आ जाता है AS24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. क्या जाता? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. एग्जाम्प्टेड में वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है. एग्जाम्प्टेड में वो रहेंगे 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29. ओके. नेक्स्ट लेवल 3 एंटिटीज. लेवल 3 मीन्स जो लेवल 1 लेवल 2 नहीं हो, किस में आ जाएगा? लेवल 3 में आ जाएगा. और लेवल 3 को भी सेम ही है, AS3 17, 18, 24, 21, 23, 27 और एग्जाम्प्टेड में भी वही रहेंगे आपके. क्लियर? सो दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जाम्प्टेड एंड सम ऑफ द पैराग्राफ्स आर एग्जाम्प्टेड. तो क्लियर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एन एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप, देख लीजिए. एमसीक्यू में पूछ सकता है. ए कंपनी वाज क्लासिफाइड एज नॉन एसएमसी इन 2015-16. In 16-17 it has became classified as SMC. तो 15-16 में नॉन SMC, 16-17 it becomes classified as SMC. The management desired to avail exemption or relaxation available to SMC in 16-17. However, accountant of company does not agree with the same comment. तो एक बार नॉन SMC है तो SMC बनने के लिए कंटिन्यूसली 2 साल तक SMC जैसा परफॉर्मेंस रहना उसका. क्या रहना? SMC जैसा, नहीं तो नहीं कर सकते फिर एग्जाम्शन आप. सो हियर ओनली 1 year it is SMC ना, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इट शुड बी SMC, देन दे कैन क्लेम द एग्जाम्शन. ओनली फॉर 1 year it is SMC, so they cannot claim any exemption. तो क्या आंसर में लिखना है आपको? इन 16-17 ओनली 1 year it is SMC, it is not SMC for consecutive 2 years, consecutive 2 years, so they cannot claim any exemption. So they have to treat it as non-SMC. क्या assume कर लेंगे उसको? Non-SMC. So as per company's accounting standard rule 2006, an existing company which was previously not an SMC and subsequently became an SMC shall not be qualified for exemption or relaxation. Okay, until company remains an SMC for 2 consecutive accounting years. Therefore, management of company claim any exemption. अंडरस्टैंड? ये एमसीक्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन कर सकता है आपको. तो समझ में आ गया यहां पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस तो मैं पहले ही बता दिया ना आपको, कौन कौन रहते हैं उसके अंदर, क्या है क्या नहीं. ICA मेंबर, CMA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्लियर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये सब ये उसी के बारे में लिखे हुए यहाँ पर. ओके. नेक्स्ट इज, क्या हुआ, कुछ परेशान से दिख रहे हैं बच्चे? क्लास आपकी 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी ना, तो ये कंप्लीट कर दूंगा आज, हो जाएगा ये. ठीक है, अगर घर में टाइमिंग बोल दिए 5 बजे तक तो छोड़ देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है. पहली बात तो पढ़ने बढ़िया वॉच नहीं देखना. पढ़ते समय वॉच देख रहे तो उसका मतलब है आप या तो घर से कोई कॉल आया तो वॉच देखेंगे, या फिर आप जाना चाह रहे कहीं तो वॉच देखते फिर आप.
चलिए कल पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं।